Okay, so very good afternoon, everyone. Let's start with our Java sessions. So as I told you in the last class, we have covered how many topics so far? We have seen what is variable in Java, different types of variable, different types of constructor. Then we have also observed like different types of method, correct now? So there are two different types of method available in Java. One is called instance method, another one is called static method, correct? So whenever you are writing any instance method, that means without any static keyword, if you define any method, that method is called instance method. So what is the purpose of instance method and what happen if you declare any instance method? Very simple. You can generate any method, but whenever you are writing any instance method, to call that instance method, every time inside a main function, you just require object to be created. Okay. With object only you can call instance method. Okay. But if you have any static method, without object also we can call that method. Static got the memory inside a metaspace, guys. So obviously you don't require any object to call any static method. Static variable, static method will get the memory inside the metaspace, and that is the reason we can directly call it, okay, without any object. So now let me explain you today some more interesting topics like methods के according we have to understand what is meant by parameter passing. Okay. So as I told you, why we require to pass any parameter? Parameter argument. अगर आपको याद है तो क्लास सेशन में हमने ये दो चीजें देखी थी ना. Arguments means while calling any method, if you are passing any data, that is called argument. Okay. अगर वो डेटा जहां पे भी आप पास करोगे तो मेथड में पास करोगे. सपोज मेथड पे आप वो डेटा एक्सेप्ट करोगे तो वो होता है पैरामीटर. जैसे एग्जांपल लेट मी शो यू. ओके. So let me create a new class. Every time in Java you have to create a new class and then only you can start writing your logic. Okay. So just create a class because Java is an object oriented programming language. That is the reason we just require class to be created. Correct. So let's create a class. And what is the class name? Let me just write here parameter passing. Okay. Parameter passing demo1. This is my class. And let me take main function directly. So main function is the starting point. It is a entry point for program execution. मतलब जो भी program आप लिखोगे कहाँ से execute होगा? Directly through the main. So consider करो कि I am writing here one method C public void and let's see add method. Fine. Inside add method, I am not going to accept any data. So I will be declaring here variable. Example integer a is equal to 10. Integer, or let me just write b is equal to 20. Fine. And I'm just going to write here one message system.println. मतलब मुझे addition को print करना है. So I will be writing along with the message addition is. And यहाँ पे मुझे print करना है inside a bracket. क्यों? Because string के साथ अगर plus operator use करोगे तो यहाँ पे बस merge होगा. Correct ना? तो हम लिखेंगे okay fine a plus b. Done. तो ये मेरा एक simple method है. And if you focus, what is the type of this method? It is an instance method. Correct ना? क्यों? Because मैंने यहाँ पे कोई भी static keyword use नहीं किया है. Every method you have to declare in this way. Access modifier, return type, and then method name along with this two round bracket. Okay. अब मेरा simple question. What type of variable these like a and b are? What type of variable? A and B कौन से टाइप के वेरिएबल है? डिफॉल्ट. ओके, इंटीजर टाइप. वेरी गुड. नाउ टेल मी इंटीजर टाइप अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल्स में वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स इन जावा. So few variables we can consider as a local variable, instance variable, and static variable. As per the types of variable, what type of variable are these? A and B are instance, local, or static? Tell me. What is meant by local variable? Whenever any variable declare within a method, inside a method, that variable is called what? Local variable. तो obviously A and B कौन से टाइप के वेरिएबल है? Both are local variable. Correct? कौन से टाइप का मेथड हमने डिजाइन किया है? We have declared a method that is called instance method. Whenever any variable you declare inside a class outside a method, then that variable is called instance variable. Suppose मैंने यहाँ पे कोई डेटा लिखा, suppose integer id, okay? तो what is the id? कौन से टाइप का है? It is called instance type. समझ में आ रहा है everybody?
तो ये वेरिएबल का टाइप है, करेक्ट ना, एंड दिस इज अ इंस्टेंस मेथड. ओके, हाउ एग्जैक्टली यू कैन कॉल दिस ऐड फंक्शन, टेल मी. आप ये ऐड फंक्शन को कॉल कैसे करोगे? अगर इंस्टेंस है तो व्हाट इज द रूल टू कॉल दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम वेयर वी कैन कॉल अ मेथड? वी कैन कॉल अ मेथड डायरेक्टली फ्रॉम द मेन फंक्शन. तो मेन फंक्शन इज नथिंग बट कॉलिंग प्रोग्राम. यस और नो? ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड इट इज अ कॉलिंग प्रोग्राम, करेक्ट. तो whenever you are calling any function at the time of writing code itself, मतलब अभी मैं कोडिंग कर रही हूँ, राइट ना, मैंने कोई भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं किया है. So whenever you are writing or calling any method at the time of writing that code itself or in the main function, then this is called what? I can say compile time calling. Okay, are you understanding what type of कॉलिंग वी आर डूइंग? कंपाइल टाइम. मतलब अभी भी आपका कोड कहाँ पे है? कंपाइलेशन में है, एंड कंपाइलेशन के टाइम पे हम कोड को और मेथड को कॉल कर रहे हैं. सो विच मेथड? ऐड. एज आई टोल्ड यू, यू कैन डायरेक्टली कॉल दैट ऐड मेथड ना, लाइक दिस. नो, दिस इज नॉट वैलिड. ऐड को अगर कॉल करना है तो यू रिक्वायर ऑब्जेक्ट टू बी क्रिएट. किसका ऑब्जेक्ट? तो सेम क्लास का ऑब्जेक्ट है ना. व्हाट इज माय क्लास नेम? माय क्लास नेम इज पैरामीटर पासिंग demo1. Okay, done. Then what I'm going to do, I will just write here a particular object. Let's say p1 is equal to new, again the constructor. This is a signature to create an object now, correct? Then what we can do, instead of calling in this way, we can call with the help of reference variable. So I will just write p1 dot what? See, p1 dot add. Here we can call this method, correct? So what type of calling it is? ये जो आप कॉल कर रहे हो, this is called compile time calling. Okay, you are calling this method at the time of compilation. Fine, but see whether I'm passing any data here. क्या मैंने मेथड में कोई डेटा पास किया है? नहीं किया, राइट ना. सो इफ यू सी द एग्जीक्यूशन, the control goes to the add method and you are getting the addition. Addition is 30. Everybody clear? So with the help of object, we are calling instance method and we are getting the result. But see, as I told you, आप लोग मेन टॉपिक हमें लर्न करना है व्हाट इज मीन बाय पैरामीटर पासिंग. सो समटाइम्स व्हाट वी कैन डू गाइस, जनरली अगर आपको कोड को डायनामिक प्रिपेयर करना है, मतलब यू कैन जस्ट पास वॉट एवर द डेटा यू जस्ट वांट टू पास. बट ये डायनामिक कोड आप कैसे प्रिपेयर करोगे? तो अगेन देयर आर टू वेज. आइदर आप पैरामीटर्स को पास करके एलिमेंट्स को और आपके मेथड को डायनामिक प्रिपेयर करो. ओके, तो जस्ट टू मेंटेन अ कोड डायनामिक, what we can do, we can pass a parameter. तो पैरामीटर मतलब इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग दिस काइंड ऑफ हार्ड कोड वैल्यू, मतलब 10 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, ये हार्ड कोड वैल्यू हम डिफाइन नहीं करेंगे. what we are going to do, we are calling this method by passing some argument, then that is called parameter passing. Are you understanding? Example, I will be writing one more method. Consider public void, and देखो ये सब नाम का मेथड है, मतलब सब्सट्रैक्शन. फाइन, एंड मुझे करना क्या है? आई जस्ट वांट टू एक्सेप्ट सम डेटा. मतलब यहाँ पे मुझे करना है सब्सट्रैक्शन. लेट मी राइट सब्सट्रैक्शन इज, बट यहाँ पे जो डेटा होगा मुझे डिफाइन नहीं करना है. आई डोंट वांट टू डिक्लेयर लाइक दिस. मुझे कोई भी ऐसे वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं करना है विद द वैल्यू. डेटा शुड बी simple pass to this method at the time of calling this method itself. मतलब अब दो चीजें हैं, आप कंपाइल टाइम कॉल कर सकते हो, रन टाइम भी कॉल कर सकते हो. वेरी फर्स्ट लेट मी शो यू व्हाट इज मीन बाय कंपाइल टाइम, देन आई विल कवर व्हाट इज द रन टाइम प्रोसेस. ओके, तो कंपाइल टाइम कॉल करना है मतलब व्हाइल कॉलिंग दिस पर्टिकुलर मेथड ओनली वी कैन पास अ डेटा. एग्जांपल, अगर मैंने कॉल किया p1 डॉट सब, ओके, तो सब में मुझे क्या करना है? आई जस्ट वांट टू पास अ डेटा हियर ओन. एग्जांपल मैंने पास किया है 100, 100,30. In this way I just want to pass my data. तो ये जो मेथड है, दिस इज आई कैन से जीरो आर्ग्यूमेंट मेथड. करेक्ट ना? हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है. बट हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट आई एम पासिंग इन सब्सट्रैक्शन मेथड? टेल मी. 2 आर्ग्यूमेंट्स. तो कैन आई से दैट दिस इज 2 आर्ग्यूमेंट मेथड. तो यहाँ पे आप 2 आर्ग्यूमेंट पास करोगे. ये पास किसको करना है? द मेथड गाइस. वी आर जस्ट कॉलिंग हियर, तो कंट्रोल गोज टू दैट मेथड. तो मेथड में पहले ये दोनों नंबर्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा. तो अगेन आई एम राइटिंग इंटीजर a कॉमा इंटीजर b. व्हाट इज हैपनिंग हियर? दिस इज व्हाट 2 आर्ग्यूमेंट्स वी आर पासिंग, राइट? एंड
these argument will simply pass to where? These parameter. So this is 2 parameter method. Are you understanding? A and B. So what is the value of A? A becomes 100. And what is the value of B? B becomes 30. Because we are passing this data to the method. And see here, I can add a logic now. Yes, what I can do? I can just write here, okay, fine. I just want to perform A minus B. मुझे subtraction करना है, correct? तो ये क्या है? This is called compile time parameter passing. What is this? Compile time parameter passing. I'm just passing the value. I'm not performing any return concept, right? मैंने बस data को pass किया है. So this is called compile time parameter passing. That's it. Now let me show you. Example, whenever I execute the code, अब दोनों method call होंगे. पहले add method call होगा, then subtraction method call होगा. So let's see the detail. Can you see the output? Addition is 30, subtraction is 70. तो जो भी data आपने pass किया है, as per that data, you are able to see the result. So whenever you are passing any data, okay, while calling that method only, okay, in a main function, then that is called compile time parameter passing. क्या ये टॉपिक सबको क्लियर है? व्हाट इज कंपाइल टाइम पैरामीटर पासिंग? सपोज टुमारो what I'm going to do, I will just declare one more method. See, suppose multiplication, fine, and here also I don't want a hard code value. मैं डेटा को एक्सेप्ट करूंगी from the method calling. तो example, integer a, I can declare integer b. See why I'm taking ab again? Because यहाँ पे जो ab है, both are again local variable guys. इस AB का स्कोप इसी मेथड के अकॉर्डिंग है. दिस AB इज डिफरेंट देन दिस AB. आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड यहाँ पे जो AB मैं लिखूंगी ये डिफरेंट है, बिकॉज हर एक मेथड का स्कोप अलग अलग होता है, राइट ना? सो अगेन दीज टू आर लोकल वेरिएबल. सो इफ यू वांट टू गो फॉर मल्टीप्लिकेशन, यू कैन जस्ट राइट योर लॉजिक इन दिस वे. सी, मल्टीप्लिकेशन इज, एंड देन वी कैन राइट इट हियर, ओके, जैसे कि A इंटू बी. क्लियर? बट ये मेथड कॉल करोगे तो कैसे कॉल करोगे? देखो, अगेन विद द ऑब्जेक्ट ना, बिकॉज इट इज अ इंस्टेंस टाइप. तो आई विल बी राइटिंग ओके फाइन p1 डॉट मल, एंड कैन यू सी दैट यहाँ पे आपको पास क्या करना है? 2 इंटीजर वैल्यू. व्हाई आई एम गेटिंग 0 हियर? 0 इज अ डिफॉल्ट वैल्यू फॉर इंटीजर ना, तो बाय डिफॉल्ट आपको 0 मिल रहा है. नाउ यू कैन पास योर वैल्यू. एग्जांपल, आई एम पासिंग सपोज 10 एंड अगेन 10. डन. सो व्हाट विल हैपन? 10 goes to the method and method will perform operation on that data. So whenever you execute the code, see, you are getting multiplication also, correct? So what is this, guys? This is called compile time parameter passing. Okay, क्या यहाँ तक सबको point clear है? What is mean by compile time? That is whenever you are executing a code, okay, एंड जब आप उस कोड को, मतलब डेटा को जब आप सिंपल पास करते हो एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ओनली, दैट इज थ्रू द मेन फंक्शन ओनली, दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पैरामीटर पासिंग. सो व्हाट इज मीन बाय पैरामीटर? सी, टू मेक अवर प्रोग्राम डायनामिक वी कैन पास पैरामीटर व्हाइल कॉलिंग मेथड. ओके, तो कॉलिंग कहाँ से करोगे? कॉलिंग के दो वेज है. आइदर आप कंपाइल टाइम करो, तो कंपाइल टाइम का मतलब होता है डायरेक्टली थ्रू द मेन फंक्शन आप कर सकते हो, और आप रन टाइम करो. तो रन टाइम पार्ट आई विल बी कवरिंग, सो वेट फॉर सम टाइम. पहले कंपाइल टाइम को पूरी तरह से स्टडी करेंगे, ठीक है? सो पैरामीटर्स वी कैन पास एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन एज वेल एज रन टाइम आल्सो. तो चलो, ये तो ठीक है कि हमने कंपाइल टाइम पैरामीटर पास किया, तो डेटा इज गोइंग टू द मेथड एंड मेथड इज परफॉर्मिंग द ऑपरेशन, एंड वंस यू एग्जीक्यूट इट यू विल गेट द रिजल्ट, राइट ना? एवरीबडी, आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? व्हाट इज कंपाइल टाइम पैरामीटर पासिंग? Because sometimes people ask you, one more interesting question. Yes, क्या ये टॉपिक सबको क्लियर है? Yes, no? अरे बोलो स्टूडेंट्स, you guys are able to hear me? Akshay, what is the status? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tell me. Compile time parameter passing, right now? तो यहाँ पे एक सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन है. ओके फाइन, कंपाइल टाइम मतलब डायरेक्टली मेन फंक्शन में आप लोग क्या करोगे? इस मेथड को जब कॉल करते हो, इफ यू आर पासिंग एनी डेटा, देन दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पैरामीटर पासिंग. क्लियर? बट इसमें एक क्वेश्चन है. पीपल आस्क यू, ओके फाइन, व्हाट इज मीन बाय, ओके, चलो एक और कंसेप्ट है. वी कैन अंडरस्टैंड
call method, okay, call method with return and without return, call method without return. अब ये क्या है? तो guys, as I told you, there are special variables are available और keywords are available in Java, right ना? तो जैसे हमने कंस्ट्रक्टर में this keyword को स्टडी किया था, this is a simple used to refer current class object, वैसे ही एक return नाम का कीवर्ड है. What is return keyword means? Here you can pass the method, pass the data to the method and you can simply return, you know, output from that method. अभी हमने क्या किया है? Without return we have called these three method, correct ना? एक मेथड मैंने कोई भी डेटा पास नहीं किया है. This is another method where I have just passed a data, but see, there is no any return statement written in the method, right ना? Void है, void का मतलब होता है return type, मतलब इस मेथड से हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे. Okay? Whenever control goes to that method, उस मेथड में जो भी है उतना ही पार्ट एग्जीक्यूट होगा and control come back to the main function, right? So we are not returning anything from this method. But suppose, so can I say that this is a parameter or I can say method calling without any return ना? Yes, absolutely fine. ये जो आपने कॉल किया है, this is a method calling without any return. Let me show you what you mean by return. Suppose I'm writing one method here. Consider public void and मैंने लिखा है suppose एक method का नाम get info, fine. And what I need to do, यहाँ पे मैं एक message को simple you know pass करूंगी get info method में. अब देखो इस मेथड का रिटर्न टाइप है void, तो अगर आपने void लिखा तो you can't return anything from this method, but मुझे रिटर्न करना है, तो what I'm going to do, I will write okay return. रिटर्न क्या? ओके मुझे रिटर्न करना है मैसेज, जो भी यूजर मैसेज पास करेगा वो मैसेज मुझे रिटर्न करना है, तो आपको सिंपल लिखना है रिटर्न मैसेज. बट सी व्हाट इज हैपनिंग, whenever method return type is void, it is not allowing you to return anything from that method. तो रिटर्न कीवर्ड का कंसेप्ट क्या है? अगर आपको कोई भी आउटपुट मेथड से कोई भी आउटपुट, दैट कैन बी इंटीजर, दैट कैन बी स्ट्रिंग, दैट कैन बी एनी टाइप, whenever you are returning from the method, the same return type you just need to specify instead of void. देखो अगर मैंने लिखा कि रिटर्न मैसेज, तो ये मैसेज तो रिटर्न नहीं होगा. क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वी हैव गिवन रिटर्न टाइप फॉर अ मेथड void. अगर void है तो आप मेथड से कुछ भी रिटर्न नहीं कर सकते. तो व्हाट इज द रूल? whenever you are using return keyword, you have to return, you know, some you have to simple define the return type, guys. Okay, instead of void, what type we can define? अब बताओ मुझे कि मैसेज कौन से टाइप का है? क्या ये इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, डबल टाइप का है? व्हाट इज द टाइप ऑफ मैसेज? स्ट्रिंग. वेरी गुड. तो मतलब रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए इस मेथड का? इट शुड बी स्ट्रिंग. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इंस्टेड ऑफ void I will be writing okay it should be string. Now this time this method will allow you to return the data, guys. तो मतलब इस मेथड का काम क्या है? जब ये मेथड कॉल होगा, डेटा आपका रिटर्न होगा फ्रॉम दिस मेथड. तो एग्जांपल, आई एम कॉलिंग हियर p1 dot let's say get info and I'm just passing here some message, let's say hello everyone. Okay, let me write hello everyone. Done. ये मैंने एक सिंपल मैसेज दिया है. तो मुझे करना क्या है? आई जस्ट वांट टू पास दिस. ओके, अभी क्या होगा देखो, दिस टाइम ऑब्वियसली जब आप मेथड को कॉल करोगे, कंट्रोल गोज टू दैट मेथड. ओके, मेथड में क्या पास हो रहा है? मैसेज. कौन सा मैसेज? हेलो एवरीवन. हेलो एवरीवन रिटर्न हो रहा है. तो व्हेनेवर रिटर्न कीवर्ड इज यूज्ड, गाइस, दिस कीवर्ड विल सिंपली रिटर्न, सी, रिटर्न्स आउटपुट. ओके, आउटपुट फ्रॉम मेथड टू कॉलिंग स्टेटमेंट. मतलब कहां पे आपका मेथड आउटपुट रिटर्न होगा? जहां पे आप मेथड को कॉल कर रहे हो वहां पे रिटर्न होगा. मतलब दिस टाइम आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस फंक्शन, एट दैट टाइम फंक्शन गेट कॉल्ड, मैसेज पास हुआ, बट ये रिटर्न हो रहा है. तो रिटर्न होने के बाद कंट्रोल कहां पे मिलेगा? ऑन द सेम लाइन. इट विल रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन ओनली. It returns output from a method to calling statement or calling function. तो इसका मतलब क्या है? कहाँ पे आउटपुट रिटर्न होगा? ऑन लाइन नंबर 42. अगर मैंने इस आउटपुट को कोई वेरिएबल में प्रिंट और स्टोर नहीं किया, आई विल बी नॉट एबल टू प्रिंट द मैसेज. लेट मी शो यू. अगर मैंने ऐसे ही रन किया, कोई भी आउटपुट आपको नहीं मिलेगा. यू विल गेट ओनली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन. यू विल बी नॉट एबल टू सी दैट मैसेज. व्हाई?
because we have written the message, but written किसको हो रहा है ये output? It is returning to this line number 42 जहां पे आपने message को simple method को call किया है. तो अब क्या करना होगा? See, the data is available in the string format ना, तो I will be writing okay fine, this is string result, okay res. अगर मैंने ऐसे लिखा तो what is happening this time? पहले राइट हैंड साइड पार्ट रन होगा, पहले मेथड कॉल होगा, मैसेज पास होगा, मैसेज रिटर्न होगा, तो वॉट एवर आउटपुट विल बी देयर, इट विल स्टोर इनसाइड दिस स्ट्रिंग and then we can simply print that result. Let's see, here I can print that result. So whenever I'm executing the code, see the result guys, can you see? This time you are getting the result now. Hello everyone. So what is the purpose of return keyword? You can pass a data, plus if you are using return statement, then you can return output from that method. Okay, तो जहां पे आपने मेथड को कॉल किया है वहीं पे आउटपुट रिटर्न होगा. यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट इट इन और स्टोर इट इन somewhere in the variable and you can print it. Example, I am creating one more method. See, public. First time I will be writing okay fine division, but this time consider I'm accepting some data, integer a comma integer b, and what I want to do is I want to return the output. तो guys कौन सा आउटपुट रिटर्न होगा? इंटीजर इनटू इंटीजर, और डिवीजन करोगे तो इंटीजर रिजल्ट, राइट? तो आई विल बी राइटिंग इंटीजर रिटर्न टाइप, and this time you have to just write okay fine return what? Return a divided by b. Are you understanding? So what is happening here? We are not printing the output ना. हमने क्या किया? मेथड को डेटा पास किया, मेथड से डेटा रिटर्न करना है. क्या रिटर्न करना है? डिवीजन. आइदर आप कोई दूसरे वेरिएबल में स्टोर करो, जैसे एग्जांपल इंटीजर c इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b, दैट इज आल्सो ओके, एंड देन यू कैन रिटर्न व्हाट? ओनली c. तो आउटपुट कहाँ पे है? आउटपुट है c में, है ना? c वाला आउटपुट कहाँ पे पास करोगे? कहाँ पे रिटर्न होगा? दिस स्टेटमेंट रिटर्न द आउटपुट टू द मेथड कॉलिंग गाइस. तो चलो मेथड को कॉल करते हैं. एग्जांपल आई एम राइटिंग हियर, आई विल बी जस्ट राइटिंग ओके p1 डॉट व्हाट? div मेथड. div मेथड में कुछ इनपुट को पास करो, एग्जांपल 10 एंड आई एम पासिंग हियर 5. ओके, सो ये जो डिवीजन है अगर मैंने ऐसे ही एग्जीक्यूट किया तो क्या आपको आउटपुट मिलेगा? व्हाट डू यू थिंक? डिवीजन में तो प्रिंट नहीं हो रहा है ना, इट इज जस्ट रिटर्निंग द आउटपुट. तो इफ यू रन लाइक दिस यू विल बी नॉट एबल टू सी एनी आउटपुट. जस्ट ऑब्जर्व, आपको बस हेलो एवरीवन तक कोड मिल रहा है ना? मुझे डिवीजन का आंसर नहीं मिल रहा है, तो क्या करना पड़ेगा? डिवीजन कंट्रोल गोज टू दैट मेथड, बट मेथड में डिवीजन होने के बाद दिस इज अ रिटर्न स्टेटमेंट वी हैव यूज्ड हियर. तो हमें क्या करना है? जो मेथड कॉलिंग है वी हैव टू स्टोर द आउटपुट इनसाइड अनदर वेरिएबल. एग्जांपल opt, let me write opt as output, okay, and then I can print that result. So I will say okay fine division, division is, what is a division? I can say opt, this is a division. So let me show you one more time. If you execute, what is the result? See, can you see this answer now? Division is 2. तो return and without return इसका डिफरेंस समझ में आ रहा है everybody? What is the purpose of return keyword? Sometimes we need to return output from the method. तो अगर आपको रिटर्न करना है तो कैसे लिखोगे? You have to just change the return type and whatever output you are simple passing from that method, okay, only that return type you have to mention. In this way you guys can declare a method. तो ये समझ में आ रहा है? What is meant by parameter passing with return and without return? ये जो multiplication example है, addition, subtraction, this is without return. But ये जो example है, this is I have created to show you return statement or return keyword in the Java. तो guys सबको clear है what is return statement? If you want to return anything from the method, you can simply use return keyword in Java. Can I give you one assignment? Yes, everyone. See, Yes, ma'am. you just need to perform practice, guys. Nothing else. ये सारे topics बहुत important है. Fine. तो do one thing. Create calculator class. Okay, calculator class. Let me just write. With 4 methods. Okay, like add, subtraction,
division and multiplication. Okay. I can say pass data to the method and return output from the method. Okay. What is the assignment number? क्या है assignment number? 4. Okay, done. So you just need to create one calculator class. तो class name होना चाहिए calculator. उसमें 4 methods को declare करो. Add, subtraction, division, multiplication. You are going to pass the data to the method guys. मतलब hard code values declare करना नहीं है. Don't declare like this. जैसे मैंने यहाँ पे किया था, right? Addition में. तो यहाँ पे जो डेटा डिक्लेयर किया है एडिशन में, डोंट डू दिस. तो आपको क्या करना है, डेटा आपको पास करना है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन. ओके. एंड प्लस ये प्रिंट भी नहीं करना है. क्या करना है, यू हैव टू रिटर्न द आउटपुट. तो रिटर्न आउटपुट करोगे मतलब क्या करोगे, हियर द कंसेप्ट ऑफ रिटर्न कीवर्ड. यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस फॉर रिटर्न कीवर्ड कि कैसे आप रिटर्न कीवर्ड से आउटपुट को रिटर्न करोगे. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस असाइनमेंट and please prepare this assignment. I just want everybody to create such a kind of logic. Eclipse नहीं है तो पेपर पेन पे आप सिंपल कोई भी नोटबुक में लिखो. It's very very simple how to create a logic or how to create a code. Fine. So create one calculator class along with method and please return the output from the method. So use return keyword. That is a hint. Done. यस, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. तो दिस इज अ वन मोर टेक्निक कि आप लोग मेथड को कॉल कैसे करोगे. दीज आर द वेरियस वेज बेसिकली कि यू कैन जस्ट पास अ डेटा एंड यू कैन कॉल अ मेथड एट कंपाइल टाइम एंड इन दिस वे you know we can just sometimes we can use return keyword, sometimes we can't return any data, right? तो आप डायरेक्टली वहां पे प्रिंट करो डेटा को, that is also okay. But with this there is a one more interview question. Okay, people ask you, okay fine, कंपाइल टाइम जब आप कॉल करते हो, ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू, ओके, एंड कॉल बाय रेफरेंस. देखो जनरली क्या होता है, जब आप मेथड को कॉल करते हो तो वॉट एवर वैल्यूज यू आर पासिंग, दैट कैन बी इंटीजर, दैट कैन बी स्ट्रिंग, दैट कैन बी एनी टाइप, ओके, देन दैट पर्टिकुलर मेथड और प्रोसेस इज कॉल्ड कॉल बाय वैल्यू. मतलब इफ मेथड कॉलिंग method is calling by passing value, okay, मतलब डेटा, एक्चुअल डेटा जब आप पास करके मेथड कॉलिंग होता है then that is called call by value. But Java is a object oriented programming language, though we can pass reference also. मतलब whenever you are calling any method, okay, whenever calling any method by passing, okay, reference of class, then this is called what, call by reference. सिंपल है. जब मेथड को कॉल करोगे बाय पासिंग एनी डेटा एक्चुअल वैल्यू तो वो होता है कॉल बाय वैल्यू. जब मेथड को कॉल करते हो बाय पासिंग एनी क्लास रेफरेंस, दैट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस. So sometimes this is very famous interview question. People might ask you what is difference between call by value and call by reference. So this is the difference. Okay. So guys, इसमें सबसे पहले whatever you know we have performed here like calling process. What is this? This is called call by value ना. ये reference हमने पास किया है क्या? नहीं. Reference मतलब क्या? Object. क्या मैंने कहीं पे भी object पास किया है? No. So this is what call by value. Okay. चलो एक काम करेंगे. We will create another class. Let me show you the difference. So let's see. Call by val, okay, versus reference. This is my class. Fine. Call by val, call by reference. Done. अब मैं क्या करूंगी देखो. I will be creating two different method. ठीक है, मैं एक simple method create करती हूँ. Public. Let's see public void and see this is call by value. Please follow camel case format. Okay. So call by value में whenever you are calling this method by passing some value. Suppose I am passing some integer data here. So let me just write integer a or integer any number. Fine.
and I just want to print that number. So I will say, okay, fine, this is call by value. मैंने क्या पास किया है, बिकॉज नॉर्मल डेटा ना, तो दिस इज कॉल बाय वैल्यू. एंड क्या है वैल्यू, तो देखो इसको प्रिंट करते हैं. लेट्स सी नंबर, है ना. तो गाइस वेरी फर्स्ट, दिस इज अ मेथड व्हिच आई हैव क्रिएटेड, इंस्टेंस मेथड, राइट. सो एज पर अ रूल वी जस्ट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट फर्स्ट, है ना. तो क्लास क्या है, ये है हमारा क्लास कॉल बाय वैल वर्सेस रेफरेंस. तो लेट्स क्रिएट अ ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. So I will be creating call by value reference. Let's say C1 is equal to new. Again, I'm creating constructor and this is a complete syntax to create a object. Done. तो यहाँ पे reference variable कौन सा है? In this statement, which is a reference variable? C1 is called reference variable ना? Yes or no? तो value मतलब direct data and reference मतलब कोई भी class का object. Okay? अब देखो. Suppose I'm calling this method call by value, fine, and I'm passing here some data. Suppose मैंने पास किया है 900. तो ये मैंने कौन सा टेक्निक फॉलो किया है? I'm calling this method by passing any data. Okay, that is called call by value. Okay, तो ये क्या है? This is call by value example. तो yes, obviously, whenever you execute this, see. Execute the code, you are able to see that data. So this is call by value 900. Everybody, it is clear? तो simple है. बच्चे यहाँ पे क्यों confusion करते हैं? I don't know. People ask you, okay, fine, what is the difference between call by value, call by reference? So very simple. Whenever you are calling any method by passing any value to that method, that is called call by value. And अगर आपने कोई method को call किया है by passing reference, तो it is called what? Call by reference. अब सोचो, suppose what I'm going to do, ये तो हुआ value example. Suppose मुझे कोई क्लास का रेफरेंस पास करना है. Let's see, we have a employee class now. ठीक है, मुझे ओपन करने तो employee class. See, this is the employee class. What I'm going to do, मुझे इस employee class का रेफरेंस अगर पास करना है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? See, I can just create an object one more time of employee class in this class. Okay, this is our latest class ना? Yes. मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पहले एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी. लेट्स से E1 is equal to new and again this is a class. And what I'm going to do, I'm just creating one method. See, one more time public. Let me write public and void, and suppose this is my method call by reference. Fine, call by reference. So what I'm going to do, I'm going to pass here some reference. But किसका reference pass करोगे? तो गाइस अब अगर मुझे एग्जांपल इस मेथड को कॉल करना है, तो कॉल बाय रेफरेंस आई शुड कॉल यूजिंग विच रेफरेंस? मैं C1 से कॉल करूं या E1 से कॉल करूं? E1. श्योर, E1 और C1. टेल मी, कौन से क्लास का मेथड है? इट इज अ क्लास, इट इज अ मेथड ऑफ एम्प्लॉय क्लास. नो ना, दिस मेथड यू कैन एक्सेस फ्रॉम C1. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो आफ्टर दिस स्टेटमेंट, सपोज मैंने लिखा ओके फाइन कॉल बाय रेफरेंस, बट सपोज आई एम पासिंग हियर रेफरेंस ऑफ E1. सो व्हाट वी नीड टू डू गाइस, हम पास तो कर रहे, व्हाट आई एम पासिंग हियर, आई एम पासिंग रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉय क्लास. एवरीबॉडी, ये समझ में आ रहा है? अब मैंने क्या किया, एम्प्लॉय क्लास का रेफरेंस पास किया. तो जब आप रेफरेंस को पास करोगे, द डेफिनेशन ऑफ मेथड शुड बी द सेम ना. सी, मेथड तो मैंने डिफाइन किया है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, बट यहाँ पे तो कुछ पास किया है आपने. अब आपने क्या पास किया है? हैव यू पास एनी वैल्यू हियर? नो, मैंने कोई डेटा स्ट्रिंग कोई भी इंफॉर्मेशन पास नहीं किया है. आई हैव पास हियर अ रेफरेंस. तो गाइस सेम डेफिनेशन आपको देना होगा. ये जो रेफरेंस है, सपोज E1 इज अ रेफरेंस यू हैव पास, बट दिस रेफरेंस इज ऑफ विच टाइप? कौन से क्लास का रेफरेंस है? It is a reference of employee class, correct? तो हमें क्या लिखना होगा? We just need to write now employee E1. See, the definition match, reference match with the definition. Now what you can do in this method, see, let me write. This is okay, this is call by reference. Okay, एंड किसका रेफरेंस अपने पास किया है? उसी क्लास का. मतलब अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखो E1 डॉट आई कैन एक्सेस एवरीथिंग, एनी मेथड, एनी इंफॉर्मेशन ऑफ विच क्लास?
employee class only. So can you see, I can access EID, I can access ename, I can access details also. चलो मैं कॉल करती हूँ डिटेल्स को डायरेक्टली. What will happen this time? अब एम्प्लॉय क्लास में जो लेटेस्ट डिटेल्स रहेंगे, राइट, ओनली दैट डिटेल्स यू आर एबल टू ऑब्जर्व ना. सी, कैन यू सी, लेटेस्ट डिटेल्स से एम्प्लॉय आईडी इज 0 एंड एम्प्लॉय नेम इज नल, मतलब बाय डिफॉल्ट आपको डेटा आ रहा है. तो वी कैन सेट अप हियर डेटा. यस, एब्सोल्युटली फाइन. सी, even.id आई विल बी राइटिंग हियर सपोज 101, फाइन. एंड मुझे सिंपल डिफाइन करना है even.ename. सपोज आई एम राइटिंग हियर स्मिता, fine. So whatever data you will set, this time you will get the same result. Let's see. Got the data 101 Smita. So what is meant by call by reference? Whenever you are calling any method by passing reference of a class, that is called call by reference. So everybody, क्या ये concept clear है? Call by value मतलब जब data को pass करोगे. Call by reference मतलब whenever you are passing any reference of a class, okay, then that is called call by reference. तो suppose मैंने ये declare किया string, okay, let's observe string s1, okay, and I'm just writing here hello. Do you remember what we have learned about string? हमने क्या सीखा है string में? String it is a class in Java. तो यहाँ पे जो s1 है ये normal variable है या ये reference है? Tell me. This is also reference ना? Yes or no? तो अगर मैंने S1 को पास किया कोई भी मेथड में तो वो क्या बन जाएगा? कॉल बाय वैल्यू बनेगा या कॉल बाय रेफरेंस बनेगा? टेल मी. स्ट्रिंग इज अ क्लास इन जावा, तो क्लास का वेरिएबल अगर पास करोगे तो इट विल बिकम रेफरेंस. वेरी गुड. So this time I can't use the same name method. Okay, I can't use same name method here. So I just need to declare one more separate method. See, public void, and I will be writing suppose string reference. Let me create this method. Okay, so suppose I'm calling this method now. See, again ये method किस class का है? Call by value, call by reference class का है. So I will be calling it again from the same. See, मैंने यहाँ पे call किया and my method name is string reference. See here, correct? But here if I'm passing s1 reference, then what is the change? What kind of change I need to do? Definition को change करना पड़ेगा ना. कौन सा डेटा पास कर रहे हो? Suppose you are passing string class का आपका s1 variable है. Yes, here you can change the variable also. मैंने लिखा suppose ss, fine, that is also okay. And suppose इस मेथड से मुझे ये रेफरेंस क्या करना है? सिंपल रिटर्न करना है. बिकॉज सी S1 के पास क्या है? कौन सा डिटेल है? हेलो. अगर डायरेक्ट प्रिंट करना है तो करो. एग्जांपल ऐसे, वन मोर टाइम, कॉल बाय रेफरेंस. ओके, कॉल बाय रेफरेंस ऑफ स्ट्रिंग टाइप. ओके, तो देखो स्ट्रिंग टाइप का रेफरेंस मुझे अगर प्रिंट करना है तो मैं किसको प्रिंट करूंगी? SS को प्रिंट करूंगी ना, राइट? तो क्या होगा? व्हाट द वैल्यू यू विल गेट? हेलो. Are you understanding? See, call by reference we are doing with a string. So what the value I'm getting? See, one more time you can observe here. So you are getting hello value. Everybody clear? तो ये आपका string data था जो आपने पास किया, correct ना? But this is called again call by reference. This is not a value, guys. Try to understand. String is a class in Java. तो S1 को अगर कोई मेथड में पास करते हो तो this is also called call by value. Sorry, call by reference. Correct? ये भी आपका कॉल बाय रेफरेंस का ही एग्जांपल है. अब एक और ट्विस्ट, सपोज मुझे प्रिंट नहीं करना है और आफ्टर प्रिंटिंग, मतलब ये मैसेज के बाद आई डोंट वांट टू प्रिंट अ कंप्लीट डेटा, आई वांट टू रिटर्न. तो मैं क्या करूंगी? आई विल बी राइटिंग रिटर्न. व्हाट इज रिटर्न? क्या रिटर्न करना है? एसएस को रिटर्न करना है. बट व्हाट इज द रूल? व्हेनेवर यू ट्राई टू रिटर्न एनी डेटा फ्रॉम द मेथड, व्हाट इज द रूल? यू हैव टू चेंज रिटर्न टाइप. मतलब void allowed नहीं है. void मतलब we can't return anything from the method. But this time I want to return ना. कौन से टाइप का डेटा है जो आपको रिटर्न करना है? See, void method cannot return a value. So you have to change a return type. And देखो suggestion which are coming from the Eclipse. Change method return type to string. मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ रहा है कि अगर पता नहीं है क्या रिटर्न करना है तो Eclipse भी आपको हेल्प कर रहा है, राइट ना? You can return string information only. That's it. But there is a one more change we need to do. Return कहाँ पे होगा? Whenever this statement execute,
तो control goes to the method calling. So here you can store the output now. See, I will say result. Fine. तो ये जो भी string data होगा result variable में आपको मिलेगा, and then that variable you can print. So let's see what is the output this time. So you will be getting two different statements. Can you see call by reference to string type hello? In this way you will get the result. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ? What is meant by call by value, call by reference? Very simple concept. Okay, whenever you are calling any method by passing any value, that is called call by value. And whenever you are calling any method by passing reference of a particular class, that is called call by reference. तो क्या मैं सेम क्लास का रेफरेंस पास कर सकती हूँ? Obviously yes, there is no issue, but you have to create a one more method for that. See, public, one more time, suppose I'm writing void and let's say same reference, मतलब same class का reference. Let me write here same class reference. ठीक है, same class reference मतलब कौन सा क्लास है आपके पास? This is a class name ना, call by value, call by reference. So I can declare here that definition, suppose C1, or you can just write any other variable name. Okay, so what will happen? Whenever you are calling this method C1 dot, let's say same class reference C. This time I will be passing which reference? C1 ना, C1 ने कॉल किया है मेथड को, C1 का ही रेफरेंस हम पास कर रहे हैं, करेक्ट ना? एंड सपोज अब जब रेफरेंस पास होगा तो दिस मेथड विल एबल टू एक्सेस एवरीथिंग फ्रॉम दिस क्लास. जैसे हमने एम्प्लॉय से कॉल किया था, तो अगर मैंने लिखा C1 डॉट, सी व्हाट आई कैन एक्सेस, सॉरी CC डॉट, मैंने वेरिएबल नेम दिया है CC, तो अगेन आई कैन एक्सेस एम्प्लॉय क्लास वाला ये मेथड, आई कैन एक्सेस कॉल बाय वैल्यू वाला मेथड, आई कैन एक्सेस सेम क्लास रेफरेंस वाला मेथड, आई कैन एक्सेस स्ट्रिंग रेफरेंस आल्सो. तो गाइस द कंसेप्ट इज क्लियर. अगर आपने सेम क्लास का रेफरेंस पास किया तो सेम क्लास में जो जो डेटा अवेलेबल है, नंबर ऑफ मेथड्स एंड वेरिएबल, एवरीथिंग यू कैन एक्सेस. सपोज आई एम कॉलिंग दिस कॉल बाय वैल्यू अगेन and this time I'm passing suppose 4545, this is a value. Okay, what will happen? Immediately control goes to call by value again. फिर से आपको मैसेज मिलेगा this is call by value. See here I have written ना, this is call by value, and यहाँ पे आपको नंबर मिलेगा 4545. देखो, so last answer देखो मिला. This is again call by value 4545, है ना? We are calling from सेम क्लास रेफरेंस. तो लेट मी राइट दिस मैसेज हियर, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड होगा. सी, कॉलिंग सेम क्लास रेफरेंस. ओके, कॉलिंग आई विल से थ्रू, कॉलिंग थ्रू सेम क्लास रेफरेंस. डन. लेट्स सी वन मोर टाइम. तो ये बस कॉलिंग कंसेप्ट है. देखो, कॉलिंग थ्रू सेम क्लास रेफरेंस, एंड कैन यू सी दैट दिस इज कॉल बाय वैल्यू 4545. डन. So guys, what is this? Whenever you are calling any method by passing any value, that is called call by value. And whenever you are calling any method by passing any class reference variable, this is called call by reference, guys. तो क्या ये concept clear है? Yes, बोलो. क्या ये concept clear है? Yes, ma'am. Okay, so first of all what we have covered, okay, let me just explain one more time. हमने मेथड से स्टार्ट किया था. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अंडरस्टूड दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड, जैसे कि दो टाइप के मेथड है, इंस्टेंस एंड स्टैटिक मेथड. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज मीन बाय कंपाइल टाइम. ओके, कंपाइल टाइम कॉलिंग. तो कंपाइल टाइम कॉलिंग में आइदर आप कंपाइल टाइम मेथड को कॉल कर सकते हो बाय विद सम पैरामीटर. ओके, तो पहले हमने पैरामीटर पासिंग सीखा. ओके, पैरामीटर पासिंग एंड लाइक डायरेक्टली हार्ड कोड वैल्यू, मतलब विदाउट पैरामीटर पासिंग, विदाउट पैरामीटर पासिंग. फिर मैंने आपको सिखाया क्योंकि फाइंड मेथड कॉलिंग, मेथड कॉल विथ रिटर्न कीवर्ड एंड विदाउट रिटर्न कीवर्ड, है ना? ये दोनों टेक्निक हमने सीखे. अब हमने एक्चुअल डिफरेंस देखा कि व्हाट इज मीन बाय कॉल बाय वैल्यू एंड व्हाट इज मीन बाय कॉल बाय रेफरेंस. अब एक और पॉइंट है, इज दैट मीन कि एवरी टाइम वी कैन कॉल अ मेथड थ्रू द कंपाइल टाइम ओनली? क्या एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल नहीं कर सकता? तो अब मुझे आपको बताना है कंसेप्ट ऑफ मेथड
chaining, method chaining and method building. Okay, what is this method building pattern, or I can say builder pattern? Okay, just observe this. Okay, first of all we will cover this part. What is mean by method chaining? Method chaining मतलब सिंपल है, एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल करना. ठीक है, देखो, सपोज आई एम टेकिंग अनदर क्लास. तो एक असाइनमेंट आपको ऑलरेडी गिवन है, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट दैट. फाइन, चलो लेट्स डू वन थिंग, वी विल क्रिएट वन मोर क्लास. सो दिस इज मेथड चेनिंग. फाइन, and see the concept. Suppose in method chaining I am creating one method. ठीक है, suppose ये है public void m1 method. ठीक है, देखो, and here also I am creating one more public void m2 method. Okay, and suppose I am creating one more public void m3 method. ठीक है, what type of method these are? कौन से टाइप के हैं? इंस्टेंस है या स्टैटिक है? इंस्टेंस, करेक्ट. तीनों भी मेथड का टाइप है इंस्टेंस. सपोज आई एम राइटिंग हियर अ सिंपल मैसेज m1 calling. फाइन, सिमिलरली आई एम राइटिंग हियर वन मोर मैसेज m2 calling. ओके, डन. and I am writing here one more message. Suppose I am writing m3 calling. ओके, अब मेरा सिंपल क्वेश्चन है कि हाउ यू कैन सिंपली एक्सेस अ मेथड, कॉल दिस मेथड. ऑब्वियसली इन मेन फंक्शन वी जस्ट नीड टू कॉल अ मेथड, राइट ना. बट मेथड कॉल कैसे करोगे? देखो, अभी तक हमने एक डायरेक्ट वे अप्लाई किया था. जैसे एग्जांपल, सपोज आई जस्ट वांट टू कॉल इन दिस वे, आई विल जस्ट क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास. तो मेथड चेनिंग का एक ऑब्जेक्ट पहले क्रिएट करेंगे इनसाइड अ मेन फंक्शन, एंड विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस वेरिएबल वी कैन कॉल दैट मेथड. So let me just give this time another obj as a name, new, again same method or class name along with constructor. Done. So using obj reference variable you can call all three method ना. देखो, मैं independently एक एक मेथड को यहाँ पे कॉल कर सकती हूँ. Suppose I am calling m1, so I will get only result m1 calling. Correct? Let's see. I am getting this result m1 calling. But if I am calling m2 method within m1, then suppose मैंने कॉल किया m2, तो क्या हम ऐसे भी मेथड को कॉल कर सकते हैं? Yes, this is also possible. तो what the output you will get? पहले m1 कॉल होगा, कंट्रोल गोज टू m1, पहले मैसेज प्रिंट होगा m1 कॉलिंग, देन नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखा है m2, so it will call m2 method, and what is there in m2? There is a message m2 calling. So once you execute, how many statements you will see? Two statements ना, m1 calling, m2 calling. Yes. अब कंट्रोल m2 के पास है, तो अगर मैंने कॉल किया m3, कॉल होगा? Obviously yes. So this time, because of only one method, you are able to access all three methods ना? Yes or no? What is meant by method chaining? From one method we can access another method. This concept is called method chaining. Everybody clear? So I can call m1, m2, m3. तीनों मेथड मैंने एक साथ कॉल किया. Yes or no, students? Yes, ma'am. Okay, but suppose यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखती हूँ. Okay, fine. Object dot obj dot. Okay, this time obj dot. Okay, yeah, o small है. Obj dot. Okay. See, again I'm calling m2. What will be the result? Let me just provide some separator. पहले m1 कॉल होगा, तो m1 तो चेन कंसेप्ट में है अभी, तो m1 is calling m2, m2 is calling m3, तो you are getting three messages. But whenever you are writing m2 calling, so what will happen? You will get only two messages, right? m2 calling and m3 calling. Yes, let's see. m2 calling, m3 calling, correct ना? तो ये क्या है? whenever you are calling any method from another method, मतलब एक मेथड से दूसरे मेथड को जब आप कॉल करते हो, this concept is called method chaining. Okay, this concept is called method chaining. But let me tell you, yes, can we call m1 and m3? Yes, we can call, but what will happen then?
अगर आपने M1 को कॉल किया तो यहाँ पे कौन सा सिचुएशन क्रिएट होगा? इट्स अ डेडलॉक सिचुएशन, राइट ना? Yes or no? This code, what is the result of this code? Let me show you. See this. Okay. This time, if I execute, see the continuous code you'll be getting now, and immediately deadlock situation occur because every method it is calling in chain fashion. दिख रहा है? इसलिए क्या होगा? This is not applicable. So now let me show you the exception. What is getting? See, we are getting something. So it is stack overflow exception. Which exception you will get whenever deadlock occurs? Continuously अगर आप call कर रहे हो M1 to M2, M2 to M3, again M3 is calling to M1. So there is a deadlock situation occur and stack overflow error you will get. This is not exception, you will get an error basically. Stack overflow error. Okay. So this is not a correct, I can say, solution to call M1 here. Yes ना, M1 को ऐसे call नहीं करना है because ये deadlock होगा. मतलब अभी हमने क्या किया है? M1 is calling M2, ठीक है, एंड M2 कॉल कर रहा है M3 को. तो गाइस अगर हमने लिखा कि चलो M3 भी कॉल कर रहा है M1 को, तो ये तो कंटिन्यू चलता जाएगा, है ना? तो इट इज अ डेडलॉक. दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड डेडलॉक. So deadlock situation is this, and that is the reason you are getting stack overflow. Stack overflow. Do you remember what is stack? JVM में पता है मेमोरी मैनेजमेंट क्लास लोड एरिया होता है, राइट ना? यहाँ पे होता है ना स्टैक. तो मतलब स्टैक अभी क्या हो चुका है? कंटिन्यूअसली फिल हो चुका है. इट इज ओवरफ्लो नाउ. सो जब आपका स्टैक ओवरफ्लो होगा, इमीडिएटली एक्सेप्शन थ्रो करेगा स्टैक ओवरफ्लो एरर. दिस इज, आई कैन से, अ मेमोरी रिलेटेड एरर. मेमोरी रिलेटेड एरर, एंड वी कांट हैंडल इट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. ऐसे एरर को आप लोग हैंडल नहीं कर सकते. We can't handle such a error. We can handle exception guys, but आप error को handling नहीं कर सकते. ये समझ में आ रहा है? तो ये जो exception throw हो रहा है, it is related to memory. तो memory related जो भी exceptions create होते हैं, this is in Java, it is considered as error type exception. तो error type exceptions को हम directly handle नहीं कर सकते. Yes everybody, समझ में आ रहा है ये stack overflow error क्या है? And the main concept, what is meant by method chaining? क्या ये clear है? Yes. So do not create any deadlock. Okay, you can just call one method from another method. But देखो, still what we are doing? हमने ऐसे कॉल किया ना M1 के अंदर आपने लिखा है M2, okay, and then M2 का जब कॉल होगा तो आपने लिखा है M3. So obviously जब M1 कॉल होगा, it will goes to the M2. M2 के पास आने के बाद it will goes to the M3, and in this way you are able to print the result. बट जब आप मेन फंक्शन में कॉल करते हो, व्हाट यू हैव रिटर्न? सी मैंने लिखा है ऑब्जेक्ट डॉट M1. इज इट पॉसिबल टू कॉल? सी इंडिपेंडेंट मेथड यू कैन कॉल ऑब्जेक्ट डॉट M2, ऑब्जेक्ट डॉट M3, बट कैन यू कॉल इन दिस वे? अगर मुझे कॉल करना है ऑब्जेक्ट डॉट M1 डायरेक्टली थ्रू M1, कैन आई कॉल M2? कैन आई कॉल M3? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मेथड चेनिंग. यस, एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल करना. बट हियर व्हाट इज द कंसेप्ट? अगर आपने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे बस हम मेथड कॉल कर रहे. ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर जस्ट कॉलिंग मेथड. बट जब आप डॉट ऑपरेटर यूज करते हो गाइस, मेथड अलोंग विद डॉट ऑपरेटर, दैट मीन्स व्हेन वी फॉलो डॉट ऑपरेटर, अगर कोई क्लास से ओके कोई भी डेटा या मेथड आपको कॉल करना है तो विद द रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वी कैन यूज डॉट ऑपरेटर ना. तो ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर अप्लाई करके यू कैन कॉल M1. बट हाउ कम यू कैन कॉल M1 along with a dot operator like M2 method? मतलब यहाँ पे ये मेथड होगा नहीं. We have to convert method in the form of object one more time. अगर ये मेथड ऑब्जेक्ट बनेगा तो ही डॉट ऑपरेटर अप्लाई करके दूसरा ऑब्जेक्ट या मेथड कॉल कर सकते हो. अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ही डॉट ऑपरेटर अप्लाई करके यू कैन कॉल तीसरा ऑब्जेक्ट और तीसरा मेथड. तो व्हाट इज दिस कंसेप्ट? ये कंसेप्ट को बोला जाता है बिल्डर पैटर्न. बिल्डर पैटर्न. So sometimes people ask you, do you know what is meant by builder pattern? Because this is a pattern we follow in Selenium. Okay, we can write a signature in this way only. तो Selenium को अगर स्टडी करना है, you should know this Java basics, correct ना? So what is a builder pattern? How we can implement the logic? Let me show you. See this.
तो ये तो सिंपल मेथड चेनिंग कॉन्सेप्ट था, राइट ना। नाउ लेट मी क्रिएट अनदर क्लास, लास्ट एग्जांपल, ठीक है, फिर इसके बाद हम स्टॉप करेंगे एंड रिमेनिंग टॉपिक्स वी विल कंटिन्यू अगेन फ्रॉम टुमारो, डोंट वरी। सो लेट मी शो यू दिस बिल्डर पैटर्न। देखो, फाइन, मैंने बिल्डर पैटर्न नाम का क्लास क्रिएट किया है। अगेन आई एम डिक्लेयरिंग 3 मेथड्स, जस्ट ऑब्जर्व। दिस टाइम लेट मी गिव सम मीनिंगफुल नेम, एग्जांपल start browser, fine. This is my first method, and here I am writing, okay, fine, browser starts, ठीक है। फिर एक दूसरा मेथड में क्रिएट करती हूँ, सपोज पब्लिक void start और लेट से रन एप्लीकेशन, ठीक है, रन एप्लीकेशन, and suppose I'm writing here a message, okay, application run, okay, and third public void, let's say stop browser, okay, browser stop, done. तो मैंने 3 मेथड्स को डिक्लेयर किया है, राइट, बट व्हाट इज माय कांसेप्ट, आई डोंट वांट टू कॉल फ्रॉम वन मेथड टू अनदर मेथड लाइक दिस, जैसे हमने प्रीवियसली किया था कि स्टार्ट ब्राउजर पे कॉल करोगे तो रन एप्लीकेशन स्टॉप ब्राउजर ऑटोमेटिक कॉल होना चाहिए, नो, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई जस्ट नीड टू इंप्लीमेंट बिल्डर पैटर्न. सो गाइस, we have to implement in builder pattern every method as an object, okay, we have to implement, okay, implement every method as object. तभी आप क्या कर सकते हो, बिल्डर पैटर्न को एग्जीक्यूट कर सकते हो. एग्जाम्पल, सी देयर इज अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, हाउ यू कैन कॉल दिस मेथड. तो अभी के लिए तो इंडिपेंडेंट कॉल कर सकते हो बिकॉज दीज आर जस्ट मेथड, है ना. तो मेन फंक्शन में जब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी, बिल्डर पैटर्न b1 सपोज इज इक्वल टू न्यू, अगेन बिल्डर पैटर्न, ये मेरा कंस्ट्रक्टर, ठीक है. व्हाट आई कैन डू, आई कैन कॉल इन दिस वे, b1 डॉट, सपोज मैं कॉल कर सकती हूँ स्टार्ट ब्राउजर फर्स्ट, ठीक है. बट जस्ट ऑब्जर्व, अभी ये सिंपल मेथड है, राइट. तो हियर इफ आई अप्लाई डॉट ऑपरेटर, सी आई एम नॉट एबल टू एक्सेस एनीथिंग ना. क्या मैं यहाँ पे कॉल कर सकती हूँ रन एप्लीकेशन, सी इट इज नॉट अलाउड. आपने मैन्युअली भी लिखा तो भी अलाउड नहीं है, यू कांट कॉल, ओके, लाइक दिस, बट आई हैव टू कॉल लाइक दिस. तो फिर क्या करना है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, यू हैव टू इंप्लीमेंट एवरी मेथड एज अ ऑब्जेक्ट. तो गाइस क्या करोगे, मेथड को रिटर्न करना है इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम द मेथड, व्हाट यू आर गोइंग टू डू, टेल मी. अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा, चलो एक एक मेथड के बारे में सोचते हैं कि चलो ये स्टार्ट ब्राउजर है, ऑब्वियसली मैंने अगर कॉल किया तो ये रन होगा, राइट. मतलब देखो, अगर मैंने ऐसे कॉल किया b1 डॉट सी स्टार्ट ब्राउजर, ऑब्वियसली मुझे आउटपुट मिलेगा, देखो, है ना, वी आर गेटिंग ब्राउजर स्टार्ट्स. बट मुझे करना क्या है, आई वांट टू एग्जीक्यूट इन दिस वे, इन अ वन सिंगल लाइन, आई जस्ट वांट टू राइट माय लॉजिक. तो आई कैन कॉल ना, क्यों, बिकॉज ये सिंपल मेथड है, स्टार्ट ब्राउजर को मुझे अभी तक मैंने कन्वर्ट नहीं किया है, तो आई हैव टू रिटर्न दिस मेथड, ओके, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ करंट क्लास. व्हाट वी कैन डू, एनीबॉडी ट्राई. इफ यू वांट टू रिटर्न दिस मेथड एज अ ऑब्जेक्ट, तो क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल, Return type. वेरी गुड, वेरी गुड. सो व्हेनेवर यू जस्ट नीड टू रिटर्न एनीथिंग फ्रॉम द मेथड, तो उसको पहले रिटर्न कीवर्ड लिखोगे ना, करेक्ट. ओके, बट रिटर्न क्या करना है, कोई डेटा पास हो रहा है, कोई आउटपुट रिटर्न करोगे, नो. मुझे इस मेथड को रिटर्न करना है करंट क्लास ऑब्जेक्ट. तो विच कीवर्ड वी कैन फॉलो टू यू नो सिंपल रेफर करंट क्लास ऑब्जेक्ट. करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा कीवर्ड हम फॉलो करते हैं अगर आपको रेफर करना है तो, डू यू रिमेम्बर दिस, डू यू रिमेम्बर रिटर्न दिस. रिटर्न दिस मतलब क्या, ये मेथड को रिटर्न करो करंट क्लास ऑब्जेक्ट. दिस कीवर्ड ऑलवेज पॉइंट टू होम, करंट क्लास ऑब्जेक्ट. मतलब दिस कीवर्ड इस मेथड को रिटर्न करेगा एज ऑब्जेक्ट ऑफ विच टाइप, करंट क्लास. तो इंस्टेड ऑफ void व्हाट आई शुड राइट, इंस्टेड ऑफ void आई शुड राइट व्हाट, बिल्डर पैटर्न, बिकॉज करंट क्लास का नाम क्या है, बिल्डर पैटर्न. देखो हो गया ना, एरर इज गॉन, राइट. तो रिटर्न दिस मतलब दिस
particular method will return you object now. So let's see. Previously we can't call any other application ना, अब कॉल कर सकते हैं क्या? देखो डॉट, कैन यू सी? जैसे मैंने डॉट अप्लाई किया, आई कैन कॉल नाउ एनी मेथड. सो सपोज आई एम कॉलिंग दिस टाइम, let me go to run application. See, it is possible, I can call. So let me execute. See, if I just execute the code, I'm getting the result. देखो ब्राउजर स्टार्ट, एप्लीकेशन रन्स, है ना? बट क्या रन एप्लीकेशन से मैं कॉल कर सकती हूँ? देखो डॉट ऑपरेटर, कैन आई कॉल एनी थर्ड मेथड? नो, आई कांट. व्हाई? बिकॉज रन एप्लीकेशन इट इज जस्ट अ मेथड. सो व्हाट इफ यू वांट टू जस्ट रिटर्न दिस मेथड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या करोगे? वन मोर टाइम सेम लॉजिक ना, जस्ट राइट रिटर्न. रिटर्न व्हाट? दिस मतलब क्या? करंट क्लास का ऑब्जेक्ट. तो वॉइड के जगह पे क्या लिखना होगा? करंट क्लास नेम. दैट्स इट. अब देखो मैजिक. सी, इफ आई अप्लाई डॉट ऑपरेटर, नाउ आई कैन कॉल. सो आई कैन कॉल लास्ट मेथड आल्सो. अगेन फ्रॉम लास्ट मेथड इफ यू वांट टू कॉल एनीथिंग एल्स, तो इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो. अभी मुझे कुछ नहीं करना है, तो आई एम जस्ट राइटिंग दिस स्टेटमेंट. एंड दिस टाइम सी, वी आर एबल टू कॉल ऑल थ्री मेथड इन अ सिंगल लाइन ना. See the result, browser start, application runs, browser stop. Got the answer everybody? तो बिल्डर पैटर्न का कंसेप्ट ये होता है कि टेक्निकली पीपल आस्क यू क्वेश्चन डायरेक्टली, ओके, व्हाट डू यू नो व्हाट इज मीन बाय बिल्डर पैटर्न. सो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जावा में ऐसा कुछ टॉपिक भी है क्या बिल्डर पैटर्न करके. तो पहला पॉइंट, यस देयर आर सो मेनी टॉपिक्स आर अवेलेबल एंड इसको अलग अलग नेम से बोला जाता है. ठीक है, समटाइम्स इट इज आल्सो रेफर्ड एज मेथड चेन, बिकॉज एट द एंड वी आर डूइंग द सेम पॉइंट, राइट? We are calling one method from another method. But if you want to do this, implement this, then you have to convert every method in the form of object. तो यहाँ पे आप स्पेशल कीवर्ड्स को यूज करो, जैसे रिटर्न कीवर्ड, दिस कीवर्ड. ओके, यू कैन फॉलो एंड यू कैन इम्प्लीमेंट द लॉजिक. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कैसे करना है कोडिंग? यस एवरीवन. Yes, So what is ma'am. builder pattern? Just convert a method in the form of object. तो जैसे मैंने बताया था कि why this topic is important, तो सिंपल है गाइस. एट द एंड हमारा मेन फोकस है सेलेनियम वेब ड्राइवर, करेक्ट ना? टेक्निकली डेवलपर्स ने, सेलेनियम डेवलपर्स ने वेब ड्राइवर को इंप्लीमेंट किया है एज अ इंटरफेस. ठीक है, तो जब आपको कोई मेथड कॉल करना है, मतलब एग्जांपल वेब ड्राइवर से मुझे क्या करना है? ब्राउजर को मैक्सिमाइज करना है, तो आपको एक सिंपल स्टेटमेंट लिखना होगा. यू विल राइट इन दिस वे, ड्राइवर मतलब पहला ऑब्जेक्ट डॉट, फिर आप लिखोगे मैनेज डॉट, फिर आप लिखोगे विंडो डॉट, फिर आप लिखोगे मैक्सिमाइज. तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा? आपके ब्राउजर का विंडो फुल स्क्रीन होगा, मैक्सिमाइज होगा. तो व्हाट इज दिस? इंटरनली अगर डॉट ऑपरेटर से कोई मेथड को कॉल किया है, एक मेथड दूसरे मेथड को कॉल कर रहा है, तो इंटरनली व्हाट पैटर्न दे हैव मेंटेन? दे हैव मेंटेन व्हिच पैटर्न? बिल्डर पैटर्न. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सेलेनियम के पूरे स्क्रिप्ट में यही आपको टेक्निक फॉलो करना है. यू आर जस्ट गोइंग टू राइट अ कोड. तो टाइम आउट ऐड करना है, सेम लॉजिक. ओके, ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट सम टाइम आउट्स, implicitly wait and then we can add the timeout. तो इस लॉजिक को अंडरस्टैंड करो कि इंटरनली सेलेनियम डेवलपर ने क्या और कौन सा कंसेप्ट फॉलो किया है जावा से. तो ये वाला कंसेप्ट फॉलो किया है कि कोई मेथड को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करो, तो एक मेथड से दूसरा मेथड आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो. तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बिल्डर पैटर्न. फाइन, आई विल बी शेयरिंग द वर्कस्पेस. जैसे मैंने लास्ट सेशन में भी वर्कस्पेस को शेयर किया था, अटैचमेंट में चेक करो, ईमेल्स में आपको मिलेगा. ठीक है, तो ये वर्कस्पेस में पूरा शेयर करूंगी, वहां पे उसको ओपन करने के बाद यू विल गेट नोटपैड फाइल्स. ठीक है, तो ये नोटपैड में पूरा कोड रहेगा. एंड ये सेम वर्कस्पेस अगर आप अपने सिस्टम में ओपन करोगे तो यू विल गेट एवरी एक्सेस ऑफ अ प्रोग्राम. फाइन, तो प्लीज प्रैक्टिस करो. टुडे वॉट एवर द टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड, यू गाइस नीड टू प्रैक्टिस इट. तो हमने मेथड, बस कंपाइल टाइम पैरामीटर पासिंग, वी हैव लर्न व्हाट इज कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, pass parameter with return, without return, that topic, and method chaining and builder pattern we have completed today. Just to practice. Tomorrow I will be starting runtime parameter passing. How you can pass any value, any data at runtime. मतलब जब कोड को रन करते हैं ना, तो कंसोल से इनपुट कैसे पास करोगे? There is a one more way to accept the input from the user. What pattern we can follow?
ये टॉपिक हम कल स्टार्ट करेंगे. ओके